آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی وہ بابرکت باسعادت رات جس کے ذریعے سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کچھ باتیں کرتا ہوں، پھر بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ میرے بعد قاری فہیم صاحب، پھر اس کے بعد مفتی شان عالم صاحب خطاب آپ سے کریں گے، ہے نہیں؟ ایک مرتبہ مچل کے جیسے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اب سنیں آپ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آج کی رات میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بیوی بچوں میں لگے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو گاڑیوں پہ سفر کرتے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے علاقے میں گھومتے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو گلیوں کو چھانتے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو علاقوں کو چھانتے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف سراٹے سے گھومنے کا مزہ لیتے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو موسم کا مزہ لینے والے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف گھومنا جانتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد میں یہ بتا کے رکھ دیا کہ وہ کوئی اور ہوگا جو گلیوں میں گھومنے والا ہو، وہ کوئی اور ہوگا جو شب بارات کی رات میں گاڑیوں پہ چکر لگانے والا ہو، علاقوں میں گھومنے والا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ میں رہنے والا ہو۔ ہم رہنے والے تو ہیں لہتا پور، کاندھا پور، برکلی گنج کے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھومنے والے تو تھے، لیکن آج ہم نے سن لیا کہ شب بارات کی محفل نوری جامع مسجد کے صحن میں رکھنی گئی ہے، تو ہم گھومیں گے نہیں، ہم پھریں گے نہیں، ہم علاقے میں گھومیں گے نہیں، بلکہ ہم یہاں کے مصطفیٰ کی شان سنیں گے، اپنے دین کا فرمان سنیں گے۔ رات کی برکت ایسی ہے، رات کی شان ایسی ہے، رات اتنی بڑی فضیلت والی ہے، رات اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتی ہے، اپنے دامن میں اتنی فضیلتیں رکھتی ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ فرماتا ہے اے میرے بندے، آج کی رات میں تو زمانے کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں آیا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے میرا ذکر سننے آیا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے میرا ذکر سننے آیا ہے، اپنے بچے کو چھوڑ کے میرا ذکر سننے آیا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے میرا ذکر سننے آیا ہے۔ گنہگار تھا نہ گھبرا، محتاج تھا نہ گھبرا، بے چین تھا نہ گھبرا، بے قرار تھا نہ گھبرا، آج تک تیرا کاروبار نہ چلتا تھا نہ گھبرا، آج تک تو پریشان تھا نہ گھبرا، اس کی رحمت پکار کے کہتی ہے اے میرے بندے، آنا تیرا کام تھا، تیرے کام میں برکتیں دینا میرا کام ہے۔ آ گئے ہو، بیٹھ گئے ہو، یہاں پہ آنا تمہارا کام تھا۔ اللہ فرماتا ہے چلیں آپ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شب برات، کہا آنا تیرا کام تھا۔
देना मेरा काम है। गुनहगार आया है ना घबरा, तू यहाँ आके माफी मांग ले। आज की रात के सदके में मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। उसकी रहमत पुकार के कहती है कोई गुनहगार जो आज की रात मुझसे माफी तलब करे, मैं उसे माफ कर दूं। है कोई आज परेशान, वो मुझसे परेशानी दूर करने की दुआ मांगे, मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूं। है कोई बे औलाद, अगर वो औलाद मांगे तो मैं उसे औलाद से सरफराज कर दूं। है कोई पुरसाने हाल, मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूं। गोया कि रहमत कहती है आजा तू, मैं तुझे निकाल के रख दूंगा। तेरा काम सिर्फ आना था और तुम यहाँ आके बैठ गए, मुस्तफा की महफिल में आके बैठे। मेरे आका फरमाते हैं ये महफिलें जो है ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी हुआ करती है। क्यारी में आके आप बैठ गए, रात भी है शान वाली, आपका काम आना था, जन्नत में पहुंचाना रब का काम है। अब एक दो रिवायतें सुन ले, बात खत्म करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद अपने दरवाजे पे आके खड़े हो गए। भूख की शिद्दत थी, कई दिन से कुछ खाया नहीं था, भूखे थे। मकान से बाहर निकल के आके खड़े हो गए और ये सोचा कि कोई भी आएगा तो मैं उनसे आके कहूँगा कि मुझे कुछ खाना मिल जाए। तो खड़े हुए हैं दरवाजे के बाहर, इतने में निगाह उठी, क्या देखते हैं हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सामने से नजर आए। अब जैसे ही वो करीब आए, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, ऐ उमर फारूक आजम, ये नहीं कहा कि मुझे भूख की शिद्दत है, ये नहीं कहा कि मैं कई दिन का भूखा हूँ, बल्कि आपने कहा था, ऐ हजरत उमर फारूक आजम, आप मुझे कुरान की कुछ आयत सुना दीजिए, मैं कुरान सुनना चाहता हूँ। ये नहीं कहा मुझे भूख लगती है, आप मुझे खाना दे दीजिए। ये नहीं कहा मैं कई दिन का भूखा हूँ, मुझे खाने का कुछ इंतजाम कर दीजिए। आपने कहा था कि मैं जो है कुरान सुनना चाहता हूँ। हजरत उमर उनके करीब आए, आके अपने सर को झुकाया, निगाहों को नीचे किया और करने के बाद में कुरान की चंद आयतें पढ़ी और पढ़ने के बाद आप चले गए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन हो गए कि हजरत उमर आए थे, कुरान सुना के चले गए। दिल में ये तमन्ना थी कि जब मैं इनसे कहूँगा कि कुरान सुना दो, ये मुझे कुरान सुनाएंगे, मेरे चेहरे की हवाइयाँ देखेंगे, मेरे चेहरे पे परेशानी के आसार देखेंगे, भूख की शिद्दत मेरी समझ जाएंगे, खाने का इंतजाम कर देंगे। लेकिन हजरत उमर तो चले गए। इतनी देर में, कुछ देर के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। आपने कहा था, ए अबू बकर सिद्दीक, मुझे कुरान की कुछ आयत सुना दीजिए। उन्होंने भी अपनी आंखों को नीचा किया और सर को झुकाया। झुकाने के बाद कुरान की चंद आयतें पढ़ी। पढ़ने के बाद में आप भी चले गए। हजरत अबू हुरैरा देखते रह गए कि ये आए थे, मेरे चेहरे को देखते खाने का इंतजाम हो जाता, लेकिन उन्होंने भी निगाहें नीची की, अपना चले गए। हजरत उमर फारूक आजम भी चले गए, हजरत सिद्दीक अकबर भी चले गए। भूख की शिद्दत बढ़ी, इतने में निगाह सामने दौड़ी। क्या देखते हैं? गरीबों के गम गुसार आका तशरीफ ला रहे हैं, बेकसों के कस तशरीफ ला रहे हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार तशरीफ ला रहे हैं। जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ लाता हुआ हजरत अबू हुरैरा ने देखा। जैसे ही सरकार करीब आए, आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भूख की शिद्दत है, मुझे या रसूल अल्लाह, कुरान की कुछ आयतें मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, अबू हुरैरा बताओ ना, सीधा क्यों नहीं कह देते कि आपको भूख की शिद्दत है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, लेकिन मैं अब दावे से एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? ये हजरत अबू हुरैरा हैं, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, भूख की शिद्दत है, चेहरे पे परेशानी के आसार नमूदार हैं, लेकिन कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई किताब, कोई हदीस की किताब, कोई किताब ये बता नहीं सकती कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक वक्त की भी नमाज ऐसी हालत में भी कज़ा हुई हो, है ना। वो खड़े हैं और कहा, सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, ये क्यों नहीं कहते कि मुझे भूख की शिद्दत
है। आपने कहा था हाँ या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं। मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्ते का दामन उठाया तो सरकार के शिकम अतहर से 2 पत्थर बंधे हुए थे। अरे अल्लाह, कितने बंधे हुए थे? 2। सरकार के शिकम अथर पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुमने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आज तेरे मुस्तफ़ा को 5 दिन हो गए, 5 दिन से तेरे नबी ने कुछ खाया नहीं है। मुझे बताइए वो मेरे नबी जिन्होंने खाने को भी छोड़ दिया, पीने को भी छोड़ दिया, लेकिन कभी मेरे नबी की जिंदगी ऐसी कि उनके मानने वालों की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। फरमाया ठीक है अबू हुरैरा आओ मेरे साथ। सरकार अपने काशाना नबुव्वत पे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ले गए, सामने ले जाके बैठा दिया। इसी इसना में एक कटोरा दूध का आया। आने के बाद में सरकार के करीब में वो रखा गया। सरकार ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। ये कौन थे? वो सहाबाए किराम जो सरकार के मदरसे में इल्म दीन हासिल करने वाले थे, इल्म सीखने वाले सहाबाए किराम को हुक्म दिया गया कि उनके बुला के मेरे करीब लाओ। वो आए, हजरत अबू हुरैरा पीछे जाके बैठ गए। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा सामने आओ। हजरत अबू हुरैरा सामने आए। आने के बाद में सरकार ने वो दूध का प्याला हजरत अबू हुरैरा के हाथ में दिया। देने के बाद में फरमाया अबू हुरैरा एक एक करके सबको पिलाना शुरू कर दो। सहाबा कितने थे? 70 सहाबाए किराम। एक एक करके कटोरा घूमता चला जाता। एक सहाबी पीते शराबोर हो जाते, दूसरे को दे देते, दूसरे सहाबी पीते शराबोर हो जाते। यके बाद दीगर वो 70 सहाबा में प्याला घूमता गया, सहाबा दूध पीते गए। उसके बाद में मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इस प्याले को अब आप ले लीजिए और इसको पीना शुरू करो। हजरत अबू हुरैरा ने दूध पीना शुरू किया, पिया, शिकम शेर हो गए। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। इन्होंने और पिया। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा ने और पिया। पीने के बाद में कहा था या रसूल अल्लाह अब सकत नहीं, हिम्मत नहीं, अब दम नहीं जो मैं और पी सकूं। मेरे नबी ने अपने लब से लगाया, दूध खत्म हो गया। आला हजरत बोले अबू हुरैरा क्या था वो? जामे शीरी जिससे 70 सहाबा के मुंह फिर गए। वो मेरे नबी की जिंदगी आप देखें। हम अभी सैयद साहब कह रहे थे हम मौलवी आपको बताते हैं कि शबे बारात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, कुबूर पे जाके हाजिरी देना चाहिए, वहां जाके एसाले सवाब करना चाहिए। हम भी चलेंगे रात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ुर रहमान, जब जलसा इख्तिताम पजीर होगा, सलातो सलाम के बाद हम लोग भी चलेंगे। तो ये कब्रों पे जाना क्या जरूरी है? कब्रों पे जाना क्या बहुत जरूरी है? हमने कहा हाँ जरूरी है। मेरे नबी की वालिदा सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। विसाल होने के बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 60,000 सहाबा के साथ कई साल बाद अपनी वालिदा की कब्र अनबर के करीब से गुजरे। गुजरने के बाद आपने सहाबा को हुक्म दिया था ए सहाबा रुक जाओ। सहाबा ठहर गए। आज मुझे बताइए हम अपने बाप को रख के चले आते हैं, कब्र पे कभी जाते नहीं। बेटे को रख के चले आते हैं, उसकी कब्र पे कभी फाता पढ़ने नहीं जाते। भाई को रख के चले आए, कभी भाई की कब्र पे नहीं जाते। माँ को रख के आए, कभी फाता के लिए नहीं गए। बेटी को रख के आए, कभी कुछ दुआ करके नहीं आए। मैंने अभी 4 दिन पहले यहीं किसी मिलाद में कहा था, और वो क्या कहा था? वो ये कि जब एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा बड़ा खुश हुआ, तमाम मुर्दे उसके करीब गए। जाने के बाद में उससे पूछा था भाई क्या हो गया, आज बड़ा खुश नजर आते हो। उन्होंने कहा था आज मेरा बेटा मेरी कब्र पे आया था, मेरे लिए साले सवाब करके गया था। उस साले सवाब की बरकत से अल्लाह ने मेरे दराजात में बुलंदियां अता फरमाई है। जब मुझे सवाब
मिलेगा तो खुश क्यों ना हूँ। एक और रोने वाला था, वो रो रहा था, मुर्दे उसके करीब गए, भाई क्या बात है, आज तो बड़ा खुशी का दिन है, लोग तो, वो सामने वाला तो बड़ा खुश है, आप क्यों रोते हो। उसने कहा मैं भी अपने बेटे को छोड़ के दुनिया में आया हूँ, मैं भी अपनी औलाद को छोड़ के दुनिया में आया हूँ, मेरे भी भाई दुनिया में मौजूद हैं, मेरे भी चचेरे तहरे भाई दुनिया में मौजूद हैं, मेरा भी पड़ोसी दुनिया में मौजूद है, मेरा भी भाई भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन कभी मेरा भाई मेरी कब्र पे आके इसाले सवाब नहीं करता, कभी मेरे लिए महफिलें नहीं रखवाता, कभी मेरे लिए इसाले सवाब नहीं करता, कभी मेरे लिए जिक्र व अस्कार नहीं करता। जिक्र करेगा तब मेरे दराजात बुलंद हों। अब मुझे बताइए, जब हम करेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं, तो मुर्दे तो बेचारे बेचैन हैं, बेकरार हैं। सरकार फरमाते हैं, जब एक बेटा बाप की कब्र पे जाके बाप के लिए इसाले सवाब करे और कहे मेरे मौला ये मेरा बाप है, मैंने कुरान से जितना भी पढ़ा है उसके सदके से तू इसकी बख्शिश व मगफिरत फरमा। मुस्तफा फरमाते हैं, बेटे की दुआ बाप के हक में बहुत जल्द कबूल होती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक मगर हम तो जाते ही नहीं है, है ना, हम तो जाते ही नहीं है। आप देखें मेरे नबी की जिंदगी, सरकार गुजरे, 60,000 सहाबा इकराम मुस्तफ़ा के साथ हैं। सरकार एक टीले पे जाके रुक गए, रुकने के बाद मेरे नबी बैठ गए, बैठने के बाद मेरे नबी ने अपने सरे अनवर को झुकाया, निगाहे रहमत को नीचे किया, अपने सर को अपने घुटनों पे रखा, रखने के बाद मेरे नबी सिसकिया बांध गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे, इतना रोए, चीखें बुलंद हो गईं। चीखें जब बुलंद हुई तो हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप रोते हैं, आपको देख के ये जो 60,000 सहाबा किराम हमारे इर्द गिर्द हैं, या रसूल अल्लाह आपका रोना ये देख नहीं पा रहे हैं, आका आपको रोता हुआ देखा है, इन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह बताइए ना रोने की वजह क्या है, आका बताइए ना रोने का मामला क्या है। मुस्तफ़ा की आंख से आंसू निकल रहा है, वहीं पे बैठे हुए सरकार रो रहे हैं। सहाबा ने देखा, सहाबा भी रोने लगे। अच्छा, मेरे नबी जब जंगल में बयाबां में और मेरे सरकार जब पहाड़ों में रोया करते थे, तो सरकार के रोने की आवाज को सुन के जानवर खाना छोड़ दिया करते थे, परिंदे जो है दाना खाना छोड़ दिया करते थे। हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये सहाबा आपकी सिसकियां देख के रोना शुरू कर दिए हैं, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप क्यों रोते हो। मेरे नबी ने फरमाया था, ए उमर क्या देखते नहीं हो, मैं आज कई साल बाद यहाँ पे आया हूँ, तुम देखते नहीं हो, ये जो सामने कब्र है ये किसी और की कब्र नहीं, मेरी माँ सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अनवर शरीफ पे सरकार ने हाजिरी दी। सरकार रो रहे हैं और हमारे हालत देखें आप, कितना जाते हैं हम, कितना नहीं जा रहे हैं, तो इंतजार कर रहे हैं कि ये आ जाए। मैंने पढ़ा किताबों के अंदर, जब मुर्दे को हम दफन करके आते हैं, तो जब मुर्दा दफन हो गया, हम अपने घर आ गए, हमारे कदमों की आहट उसने सुनी, आहट सुनी और हम तो चले आए। अब वो मुर्दा वहीं कब्र में पड़ा हुआ है। इतने में वो अजाब के फरिश्ते कब्र के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद में जब उसकी तरफ को अजाब बढ़ा, तो मुर्दा वहाँ पे उठ के बैठा और पीछे को सरकना शुरू किया। इतना सरका कि पीछे जाके दीवार उसके जो है पीठ से मस हो गई, टच हो गई। अब इधर को जाए तब नहीं बचे, दाईं जानिब जाए तब नहीं बच रहा है, आगे को जाए तब नहीं बच रहा है, कब्र में खड़ा भी नहीं हो सकता। जितना सरकना था बेचारा सरक गया। और जब देखा कि अब दीवार मुझसे टच हो गई है, अब इससे पीछे तो मैं जा नहीं सकता, अब क्या मेरा बनेगा। सामने फरिश्ते हैं, बड़े खतरनाक फरिश्ते हैं, नीली नीली आंखें हैं, डर है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मुझे बचाएगा कौन, मैं बचूंगा कैसे। तब दाईं जानिब से उसे बचाने के लिए आ गए, बाईं जानिब से उसे बचाने के लिए आ गए, पैती की जानिब से उसे बचाने के लिए आ गए, सरहाने की जानिब से उसे बचाने के लिए आ गए। एक इधरी से नमाज उसे बचाने के लिए आती है और नमाज कहती है, ए फरिश्तों रुक जाओ, इसने दुनिया में मेरी हिफाजत की थी, अब मैं तुम्हें इसके करीब जाने नहीं दूंगी। किधरी से रोजा आता है, कहता है, ए फरिश्तों रुक जाओ, इसने दुनिया में मेरी हिफाजत की थी, मैं तुम्हें इसके करीब
गरीब जाने नहीं दूंगी। कहीं सदका बताता है, कहीं कुरान की आयतें बचाती हैं, कहीं कुरान की सूरतें बचाती हैं, लेकिन बचाते तो हैं, लेकिन बचाने के लिए हमें जरूरी ये था कि हम अपना ईमान दुनिया से सलामत लेके जाते। आज हमारी बेटियां ना जाने कितनी कहां चली गई, आप मेरे इशारे को समझेंगे, ना जाने कितनी मुर्तद्दा हो गई, हम देखने को राजी नहीं, हम उसके बारे में कुछ सोचने के लिए नहीं। हमारी ना जाने कितनी बेटियां काफिर हो गई, मुर्तद्दा हो गई, लेकिन हमें एहसास नहीं। एहसास इसलिए नहीं क्योंकि हम तो अपना अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा हमारा मकान है। हमारे पड़ोस की अगर लड़की मुर्तद्दा हो गई, काफिर हो गई, तो हमारी सेहत पे असर क्या है? मेरी बेटी तो सलामत है, मेरी बेटी तो अभी घर में ठीक है, मेरे बच्चे तो अभी सलामत है। पड़ोस की अगर बेटी मुर्तद्दा हो जाए, उसका ईमान चला जाए, वो काफिर हो जाए, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं। अच्छा, मुर्तद्दा होने की वजह क्या है? काफिर होने की वजह क्या है? उस गरीब पड़ोसी के पास लड़कियां तो हैं 4, लड़कियां तो हैं 5, लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं जो वो उसकी शादी कर सके। बेचारा शादी कर नहीं पा रहा है, लड़कियों की उम्र बढ़ गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना पैसा आप इधर उधर थानों में बर्बाद करते हो, कचोरियों में बर्बाद करते हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? कोई 10 लाख दे रहा, कोई 5 लाख दे रहा, कोई 2 लाख दे रहा, आपस में ही लड़ गए और भरे पड़े हैं थाने को। ऐसा नहीं है, सबको पता है, बहुत भर रहे हैं, समझ रहे? कितना पैसा बर्बाद हमारा हो रहा है। उसी पैसे को आपस में जो लड़ाइयां हैं उनको खत्म किया जाए, उस पैसे को इकट्ठा किया जाए और मोहल्ले में, इलाके में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में देखो कि कौन गरीब है, किसका बाप शादी नहीं कर पा रहा है, उससे जाके कहो, ए मेरे पड़ोसी, तुम गरीब हो, आप अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखो। फंडिंग करना मेरा काम है, आपका काम सिर्फ रिश्ता तलाश करना है, उस बेटी की शादी करना हमारा काम है। क्या बात है, काम हो जाएगा। दूसरी चीज, मुझे बताओ कितना बड़ा इलाका है। अभी कल भी मैंने ये बात छेड़ी थी, कितना बड़ा इलाका है हमारा। सदर, ठिरिया, नबी नगर, कितने गांव हैं? आप मुझे बताओ, इसमें कितने गरीब हैं मुसलमान? बहुत कम है ना, ज्यादातर तो सब पैसे वाले हैं। पूरे इलाके में एक भी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी हो तो मुझे दिखा दो। है कोई यूनिवर्सिटी? एक यूनिवर्सिटी है जिसको हुजूर ताजुश शरिया ने कायम किया, वो है जामियतुर रज़ा, लेकिन वो है दीनी यूनिवर्सिटी। जी जी जी। दुनियावी यूनिवर्सिटी कोई है पूरी बरेली में? हो तो दिखा दो। और बरेली में मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर हमारी खुद की यूनिवर्सिटी हो, फिर उसमें दीन भी सिखाया जाता हो, कमी कहाँ है? मैं आपको बताऊं, लड़का डॉक्टर बन गया, लड़का इंजीनियर बन गया, लड़का IPS बन गया, लेकिन उसे दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सही बात है। 20 साल पढ़ने के बाद उसे कभी ये सब्जेक्ट नहीं सिखाया जाता है कि तेरे दीन में क्या है, इस्लाम में क्या है, नबी ने जिंदगी कैसी गुजारी। समझ रहे कि नहीं? स्कूल हो, उसमें एक निज़ाम हो, उस निज़ाम में कुरान का दर्स भी हो, उसमें सीरत मुस्तफ़ा नामी कोई किताब भी हो, उसमें मुस्तफ़ा के अखलाक पे रोशनी डाली जाए। और बल्कि मेरा कहना तो ये है कि जब यूनिवर्सिटी हो तो उसमें एक ना एक लेक्चर देने वाला मौलवी ज़रूर होना चाहिए। सही बात जो है। दीन को बचा ले। सही बात। हाँ? जी। मेरा भाई, इसका आपसे सवाल होगा हश्र के दिन, वो क्या, मैंने तुम्हें औलाद दी थी, तुमने उस औलाद का किया क्या? अल्लाह ने आपको जो 4 बेटे दिए हैं वो कमाने की मशीन नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? कमाने के लिए मशीन नहीं है वो, उसका हिसाब अल्लाह लेगा आपसे। मैंने तुझे जो बेटे दिए, तूने उसका किया क्या? दीन सिखाया? तो मैं बताओ मुझे क्या जवाब आप देंगे? बहाने आप कितना तलाश करोगे? हम लोग तो जानते हैं भाई, तुम कितना भी कह दो कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, मानते हैं हम तो, है ना? वहाँ थोड़ी चलेगा, है कि नहीं? अल्लाह सवाल करेगा, जर्रे जर्रे का सवाल होगा, कतरे कतरे का सवाल होगा, हर चीज का सवाल होगा। बोल तूने ये किया क्या था? तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, उसका भी सवाल तुमसे होगा। तुम्हारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसका भी सवाल आपसे होगा। एक औरत कयामत के दिन 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। समझ रहे? अल्लाह फरमाया कि इसे उठाओ, जहन्नम में डाल दो। वो जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेगी, फिर मुड़ के देखेगी, फरमाया जाएगा इसको वापस लाओ।
وہ واپس آئی، ہاں کیا بات ہے، کیوں مڑ کے دیکھا؟ وہ کہے گی کہ میرے مولا یہ میرا باپ جو ہے جس کی وجہ سے میں دنیا میں آئی تھی، میرے مولا میں روٹھ جاتی تھی، یہ میرے لیے سب کام کرتا تھا، مجھے مناتا تھا، میرے لیے گفٹ لاتا تھا، میرے لیے ساز و سامان جو ہے اکٹھا کرتا تھا، جو میں اپنے منہ سے نکالتی تھی یہ لا کے دیتا تھا، لیکن میرے مولا اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ، اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو قرآن پڑھ، اس نے کبھی سمجھایا ہی نہیں۔ تو میں جو آج جہنم میں جا رہی ہوں اس کی وجہ یہ میرا باپ ہے، یہ بھی اتنا بڑا گنہگار ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس لڑکی کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، دونوں کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ وہ پھر پہنچی، پھر اس نے مڑ کے دیکھا، کیا بات ہے، اسے واپس لاؤ۔ وہ پھر واپس گئی، اب کیا بات ہے؟ وہ کہے گی میرے مولا باپ کے بعد میرا یہ بھائی ہے جس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا نماز پڑھ، کبھی نہیں کہا کہ قرآن پڑھ، جتنا میرا باپ گنہگار ہے اتنا یہ بھی ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو اور لے جاؤ سب کو جہنم میں پھینک دو۔ پھر پہنچی جہنم کے دروازے پہ، پھر مڑ کے دیکھا، کیا بات ہے، پھر لاؤ اس کو۔ پھر وہ واپس آئی، ہاں کیا بات ہے، اب تو نے مڑ کے کیوں دیکھا؟ عورت کہے گی میرے مولا باپ اور بھائی کی دہلیز سے نکل کے میں اپنے شوہر کی خدمت میں آئی تھی، اس کی دہلیز پہ میں آئی تھی، میرے مولا یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے حسن کی نمائش کراتا تھا، اپنے دوستوں کے پاس آ کے دوستوں کو دکھاتا تھا، دیکھو میری یہ شریک حیات ہے، میری یہ بیوی ہے، میری یہ بیگم ہے، کتنی خوبصورت میری بیوی ہے، آپ اسے دیکھو اور اس کی تعریف کرو۔ تعریف کے لیے یہ لوگوں کے سامنے مجھے بے پردہ کھڑا کیا کرتا تھا، میرے مولا میں جب روٹھ جاتی تھی مجھے مناتا تھا، کبھی اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ دین کا کام کر، کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھ، میرے مولا یہ بھی گنہگار ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس عورت کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو اور تمام کو جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ پھر پہنچی جہنم کے دروازے پہ، پھر اس نے مڑ کے دیکھا، اللہ فرمائے گا واپس لاؤ۔ اب کیا بات ہے، بھائی تیرے ساتھ جا رہا ہے، تیرا باپ تیرے ساتھ جا رہا ہے، تیرا شوہر تیرے ساتھ جا رہا ہے، اب کیوں رک گئی؟ عورت کہے گی مولا یہ باپ کے بعد، بھائی کے بعد، شوہر کے بعد تو نے مجھے ایک میرا بیٹا لختے جگر بھی دیا تھا، میرے مولا اس کو مناتی تھی میں، یہ روٹ جاتا تھا اس کا کہنا مانتی تھی میں، یہ جو کہتا تھا وہ کرتی تھی میں، یہ صبح میں بہترین کھانا مانگتا تھا میں بنا کے دیتی تھی، یہ جو چیز مانگتا تھا میں اس کو دیا کرتی تھی، اے میرے مولا لیکن اس بچے نے کبھی مجھے دین کی بات کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی مجھے سمجھایا نہیں، میرے مولا یہ بھی اتنا گنہگار ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس عورت کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو اور اس کے بیٹے کو پکڑو، سب کو پکڑو اور سب کو لے جا کے پانچ کو جہنم میں ڈال دو۔ آپ مجھے بتائیے ایک عورت 4 آدمیوں کو لے گئی جہنم میں، اب بچا کون؟ گھر میں ہوتے ہی کتنے لوگ ہیں، باپ ہوگا، بھائی ہوگا، شوہر ہوگا، بیٹا ہوگا، بچے ہی کتنے لوگ؟ جتنے گھر میں لوگ تھے سب تو چلے گئے، بچنے کا ایک ہی سادن ہے، عورتوں کو مخاطب کہہ کے کہہ دو کہ یہ ہمارے مرد سو گئے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، مرد سو گئے ہیں، نماز پڑھنا نہیں جانتے، اپنے کاموں میں اگر تم روٹھ جاتی ہو تو یہ تمہیں مناتے ہیں، تمہاری ڈیمانڈیں اتنی ہیں کہ مجھے یہ سوٹ چاہیے، مجھے اتنا خرچہ چاہیے، مجھے اتنا پیسہ چاہیے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، تمہاری ڈیمانڈ میں پوری کی پوری دنیا ہے۔ اے خواتین اسلام آپ کو مخاطب کر کے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کل سے اگر روٹھو تو اس بات پہ مت روٹھنا کہ میرے آدمی نے، میرے شوہر نے مجھے سوٹ نہیں دلوایا، اس بات پہ ناراض مت ہونا کہ میرے شوہر نے مجھے پیسہ نہیں دیا، اس بات پہ ناراض مت ہونا کہ میرے شوہر نے میری خواہش کو پورا نہ کیا، بلکہ ناراض ہونا تو اس بات پہ ہونا کہ اے میرے شوہر میرے جسم کو ہاتھ لگانا بعد میں، اس سے پہلے نماز پڑھ، عشاء کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد میں اپنے جسم کو تجھے ہاتھ لگانے دوں گی۔
फजर की नमाज पढ़ेगा, उसके बाद मैं तुझे नाश्ता दूंगी। जब तू मेरा कहना मानेगा तब मैं तुझे नाश्ता दूंगी। मैं पूरे दावे से यहाँ बैठ के ये जुमला बोल के जा रहा हूँ, अगर ये औरतें कल से नमाज फजर पढ़ना शुरू कर दे और इनको देख के इनका बूढ़ा बाप उठ जाए, देखे मेरी बूढ़ी बूढ़ी बीवी नमाज पढ़ रही है, बूढ़ा देखेगा उठेगा मस्जिद में चला जाएगा। एक जवान औरत अपने शौहर के सामने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े, शौहर को गैरत आएगी, उठेगा मस्जिद में चला जाएगा। बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के पास में सुबह को उठ के अपनी जरूरियात से फारिग हो गए, बेटे की खटिया के पास में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर दे। बेटा जो कलियल जवान है देखेगा बुढ़ापे में मेरी माँ ने सर्दी के आलम में वुजू किया है, उठेगा, हया आएगी और मस्जिद में चला जाएगा। इधर औरतों ने मुसल्ले बिछाए, इधर मर्द अपने घर से मस्जिद की तरफ रवा हो लिए, इधर मर्द अपने घर से निकल के मस्जिद में दाखिल हुए हैं, इधर फरिश्ते परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू नवानहू की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह फरमाए, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ कहां से आ रहे हो? फरिश्ते कहते मेरे मौला तेरे बंदों के पास गया था, मेरे बंदों को क्या देखा? फरिश्ते कहेंगे मेरे मौला मैंने देखा कि तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को जगा दिया है, तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को जगा दिया है। और अल्लाह फरमा दे, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन औरतों को भी बख्श दिया है, उनके घर के मर्दों को भी। खुराफात खत्म और दीन का काम कीजिए, है ना? दीन का काम क्या है? जो गरीब है उनका ख्याल रखिए। अभी कल हमने एक तकरीर सुनी, उसी को मैं थोड़ा सा लगाता हूँ, एक जुमला खाली उठाता हूँ मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब का। क्या कि अगर बच्चे कोई मदरसे में पढ़ रहे हैं, किसी वजह से अगर उनकी पढ़ाई रुक गई है, घर की गरीबी की वजह से, है ना, मुफलिसी की वजह से, भाइयों को जितना पढ़ाना था उतना उन्होंने उनको मौलवी बना दिया, किसी को कारी बना दिया, अब इतनी पैसा नहीं है कि बेचारे पढ़ा पाएं। आपके पास पैसा है, थाने कचहरी कोर्ट में बर्बाद ना करके एक मौलवी जिसकी पढ़ाई रुकी है उसके ऊपर अपना रुपया खर्च करो। मैं दावे से कहता हूँ कामयाब हो जाओगे। कैसे? हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को उमैया मार रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ, देखा, बड़ी तकलीफ हुई, सरकार के करीब आए, या रसूल अल्लाह, एक बिलाल है, एक उमैया है, बहुत तड़पाता है, बहुत मारता है, या रसूल अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उनको खरीदूं और खरीदने के बाद मैं उनको आज़ाद कर दूं। इतना कहा, क्या हो गया? कहाँ से है? उड़ तो नहीं गया, हो गया, रहने दो। है कहा क्या कि या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल ये चाहता है पैसे वाले ऐसे पैसा खर्च करें, काम हो जाएगा उनका। कहा या रसूल अल्लाह मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बिलाल को बड़ा मारता है उमैया, बड़ा तड़पाता है उमैया, या रसूल अल्लाह दिल ये कहता है कि मैं उनको खरीदूं और खरीद के आज़ाद कर दूं। सरकार ने अपनी जेब मुबारक से कुछ पैसे निकाल के हजरत अबू बकर सिद्दीक की हथेली पे रखे और जमाने को ये पैगाम दे दिया कि अगर तू मजबूर के साथ है अल्लाह तेरे साथ है। पैसा देके मेरे नबी ने फरमाया था, ए अबू बकर सिद्दीक ये ले जाओ, ले जाके हजरत बिलाल को जो है खरीद के उनको आज़ाद कर दिया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का पैसा दीन के काम में बहुत खर्च किया गया। यहाँ तक मैंने पढ़ा कि सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक का पैसा ऐसे खर्च किया करते थे गोया कि मेरे नबी का पैसा है ना, पैसे वाले हो तो ऐसा खर्च किया करो। अब किसी ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक अपनी औलाद को दांव पे लगा चुके हैं, अपने माल को दांव पे लगा चुके हैं, या रसूल अल्लाह इन्हें मिला क्या? मेरे नबी की ज़बान अक़दस खुली, आका इरशाद फरमाया
فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ صدیق نے اپنا مال میرے قدموں میں ڈھیر کیا، صدیق نے اپنی اولاد کو میرے اوپر قربان کیا ہے، تم یہ کہتے ہو صدیق کو ملا کیا؟ میرے نبی کی زبان کھلی، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اس مشرق و مغرب کے مابین اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو وہ میرے صدیق اکبر کو کیا دیکھنا۔ بات ہے واہ 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 کیا بات ہے یہ کامیابی ہے، کیا بات ہے سمجھ رہے؟ یہ ہے کامیابی، بہت اچھا بھائی بہت اچھا اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ کامیابی تو بھیا میری سمجھ رہے یہ کامیابی ہے۔ بہت اچھا بیان ادھر ادھر پیسہ برباد کر کے، اچھا ایک بات میں آپ سے اور کہوں وہ کیا، جھکنے میں بڑی بھلائی ہے، جھکنے میں اتنی بھلائی ہے، مطلب اگر سامنے والا کوئی آپ سے کہہ رہا ہے تھوڑا سا لچ جاؤ، لچنے والا سلامت رہتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، آندھی آئی بہت تیز کی اور جو کھڑا ہوا تھا پیڑ اپنی جگہ بالکل مڑا ہی نہیں، بالکل آندھی آئی لپیٹ کے لے گئی، اور جس کے اندر جھکاؤ تھا آندھی آئی وہ جھکا، زمین کو چھوا پھر سے کھڑا ہو گیا، ہے نا؟ جھکا تھا تب بچا ہے نا، جھک گیا وہ بچ گیا۔ جسے جھکنا نہیں آتا وہ اکھڑ جاتا ہے، تو جھکنے میں بھلائی ہے۔ جھکنے میں کتنی بھلائیاں، پیسہ آپ کا سلامت، عزت آپ کی سلامت، وقار آپ کا سلامت، تو روزانہ آپ کھانوں کے چکر لگائیں اس سے آپ محفوظ۔ سرکار کے ایک فرمان میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، یعنی آپ لچ گئے، تھوڑا سا جھک گئے تو کامیابی آپ کا قدم چومے گی، ہے نا؟ میرے ساتھ مل کے کلمہ شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔